बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा असद नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, क्यू is a linear list of elements in which insertion take place at one end, and that end of the queue is called the rear end, while uh, deletion take place at the other end, and that end of the queue is called the front. Queue has two ends, front end and rear end. Insertion will take place at rear end, back end, and while deletion of element will take place at the front end. So the order of deletion of element is the same to the order of insertion. Means the order in which the element were inserted to the queue will be the order of deletion of element from the queue. The element which will come first to the queue will be served first, will process first. So we can say that queue is also called first in first out structure. Shortly we can say it FIFO. FIFO structure, first in first out structure. As example, we can say people waiting for a bus on a bus stop, people waiting on a bank window to submit their utility bills. These may be the example of queue. See at the figure to understand the concept of queue. Suppose at figure 1 at first stage, initially we have 4 elements in a queue, and these elements are A, B, C and D. A was inserted first, after A B was inserted, after B C was inserted, and at the end D was inserted. At this stage our front element is A, while rear element is D. Rear element is D. So at second stage we deleted the first element, the front element, that is A. Actually we cannot delete any other element other than front element. So now front updated and moved to represent element B, while rear is at the same place, that is representing element D. At third stage, suppose we introduce two new elements E and F. E and F. As we said in our definition, insertion can take place only at rear end, while deletion take place at the front end. So now at this stage our front element is same, that is D, while rear element is F. Means rear has been updated to represent the element F. At stage 4, suppose we perform delete operation on Q, so B will be deleted. So here B is removed from the Q. So now at this stage front will be at C, while rear will be at same place, will represent the element F. Now viewers, let's talk about the memory representation of queue. How to represent a queue in computer memory. Representation of queue in computer memory. Actually there are two standard ways to represent a queue in computer memory. That is one is array based representation of queue and pointer based representation of queue. Here we will talk about the array based representation of queue. In array based representation of queue, we need to define a linear array naming as Q. We need to define a linear array, one dimensional array, name as Q.
along with we will define two pointer variables to point out the front element and the rear element of the queue. So these are front and rear. I repeat, we will define a linear array, one dimensional array according to our length, and along with we will define two variables front and rear to point out the front element of the queue and the rear element of the queue. Viewers, as we noted in our example in figure, at the time of deletion the front was upgraded by 1, incremented by 1, while at the time of deletion the value of rear pointer was incremented by 1. So this can be achieved in programming. This can be achieved by the assignment, that is at the time of deletion we will update front as front equal front प्लस 1, यानी फ्रंट को हम एक वैल्यू इंक्रीमेंट करके अगले एलिमेंट पे भेज देंगे, बिकॉज array is a sequential structure. As you know that array is a sequential structure which stores data element in a contiguous memory location, in a successive memory location, in a block of memory. So अगर हम एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो लाजमी बात है कि उसके फ़ौरन बाद जो एलिमेंट है वही हमारा फ्रंट एलिमेंट होगा. तो इसको नेक्स्ट एलिमेंट को एज अ फ्रंट एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए वी कैन यूज़ दिस असाइनमेंट सिंबल. सो एट द टाइम ऑफ डिलीशन जब हम रेयर एंड से किसी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो ऑब्वियसली जो उसके साथ वाला जो एलिमेंट है उसके तो उस जब इंजर्शन करेंगे रेयर एंड पे, तो रेयर जिस लोकेशन पे है वहाँ पे तो ऑलरेडी कोई ना कोई वैल्यू होगी. अब हमने नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना है क्यू के अंदर, तो अगर क्यू के अंदर जगह है तो फिर हम उस रेयर को अपडेट करके अगले इंडेक्स पे लेके जाएंगे जो फ्री लोकेशन होगी. तो उस फ्री लोकेशन के ऊपर फिर हम क्या करते हैं, उसी रेयर की वैल्यू को यूज़ करके हम उस फ्री लोकेशन के ऊपर आइटम को इंसर्ट कर सकते हैं. सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय द असाइनमेंट, दैट इज रेयर इक्वल रेयर प्लस 1. सो क्यू के अंदर हमने देखा कि हम क्यू को मेमोरी के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे. बहुत सिंपल, एक लीनियर अरे डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायर्ड लेंथ और डेटा टाइप. अगर हम इंटीजर वैल्यू को डील कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप इंटीजर रखेंगे. फ्लोट को डील कर रहे हैं तो उसकी डेटा टाइप को हम फ्लोट रखेंगे. तो इसी तरह जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है, और ये यहाँ पे याद रखें दिस इज़ आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है अरे रिप्रेजेंटेशन का. अरे रिप्रेजेंटेशन इज़ अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन, बहुत इजी है, लेकिन इसकी ये डिसएडवांटेजेस है कि एडवांटेज है कि अरे इज़ अ स्टैटिक स्ट्रक्चर, तो हमें उसकी एक लेंथ पहले से डिफाइन करनी पड़ती है. ना ही हम फिर उस लेंथ से एक्सीड कर सकते हैं मतलब प्रोग्राम रन टाइम में, और ना ही हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं. तो ये, लेकिन इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि बिफोर एंटरिंग द प्रोग्राम हमें ये भी पता होता है हमें पहले से कि हम हाउ मच एलिमेंट वी कैन स्टोर टू द क्यू. जबकि पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन में कंडीशन इससे थोड़ी डिफरेंट होती है. वहाँ पे हम रन टाइम पे नोड्स को क्रिएट करते हैं और फिर रन डिलीट भी करते रहते हैं. वहाँ पे हमारे पास कोई लेंथ वाली कोई बात नहीं होती. अब जब हम स्टैटिक स्ट्रक्चर के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो अगर हम बात करेंगे क्यू के जो ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस उन पे बात अगर हम करें, बेसिक ऑपरेशंस रिलेटेड टू द क्यू देयर आर, तो ये हमारे पास दो हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन. ये हमारे पास दो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो क्यू के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, इंसर्शन एंड डिलीशन. एडिंग समथिंग टू अ क्यू एंड रिमूविंग समथिंग फ्रॉम द क्यू. सो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमने एक लॉजिक क्रिएट करनी होगी, और वो यानी किस तरह हम प्रोग्राम करेंगे, हाउ टू प्रोग्राम, how to implement these operations in computer system in any language, using any language. For example, if you are using C language,
तो इसके पीछे जो लॉजिक है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह पहले हम अपनी लॉजिक को डेवलप करेंगे। जब आप लॉजिक को डेवलप कर लेंगे तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना किसी भी लैंग्वेज को, सपोज करें आप सी यूज़ कर रहे हैं, C++ यूज़ कर रहे हैं या एनी अदर कोई दूसरी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको ईजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम उसके लिए एल्गोरिदम लिखेंगे। As you know that algorithm is a predefined well defined steps to solve a problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम डिफाइन कर सकते हैं, इजीली मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि द आइडिया बिहाइंड अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज एल्गोरिदम। कि जब भी हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले हम अपने एक लॉजिक, एक आइडिया डेवलप करते हैं कि हाउ टू प्रोग्राम, हमने कैसे प्रोग्राम करना है, कौन कौन सी डेटा टाइप्स इसके अंदर यूज़ करनी है, कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ करने हैं, किस तरह कौन कौन से डिसीजन स्ट्रक्चर्स हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। और जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो किस फॉर्मेट में, किस तरीके से होगी, तो ये सारी जो लॉजिक है इसको हम एक एल्गोरिदम कह सकते हैं। तो इन दो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम बेसिक दो एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। उन एल्गोरिदम्स को समझने से पहले मैं थोड़ी सी एक प्रैक्टिस आपको करवा लूँ ताकि आप अच्छी तरह फ्रंट और रेयर की जो अपडेशन है उसको समझ लें कि फ्रंट किस तरह अपडेट होगा, रेयर किस तरह अपडेट होगा। फिर हम बात करेंगे इसके बेसिक ऑपरेशंस को, इंजर्शन, क्यू इंजर्शन और क्यू डिलीशन के ऊपर। आइए व्यूअर्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं क्यू के ऊपर, फिर हम यही प्रैक्टिस जो है दिस विल हेल्प अस to understand the statements, the logic behind insertion and deletion of the element. Suppose our queue is empty, initially queue is empty, तो उस वक्त हमारे पास फ्रंट और रेयर क्या होगा। इनिशियली अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो हमारे पास इट मीन्स फ्रंट भी ज़ीरो होगा और रेयर भी ज़ीरो होगा। फ्रंट इक्वल नल एंड रेयर इक्वल नल। फ्रंट नल है इट मीन्स उसका कोई रेयर नहीं है। इनिशियली ये स्टेज होगी। ये चेक हमें जो है ये फ्रंट इक्वल नल ये हमें हेल्प करेगा उस वक्त जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जिस तरह हमने स्टैक के अंदर पुश पॉप में, पुश में हमने ओवरफ्लो का चेक रखा, पॉप के अंदर हमने अंडरफ्लो का चेक रखा, तो यहाँ पे भी इंजर्शन डिलीशन में हमने ये इन चेक्स को रखना है ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम स्मूथली रन कर सकें। जब हमारे पास जगह हो तो एलिमेंट इंसर्ट हो, ना हो तो हमें मैसेज मिल सके टाइम पे, एलिमेंट डिलीट करने के लिए हो तो डिलीट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो, अदर देन मैसेज आ जाए कि अंडरफ्लो का कोई एलिमेंट नहीं है जिसको हम डिलीट करें। तो इसीलिए इस कंडीशन को आपने याद रखना है कि व्हेन इफ फ्रंट इज नल तो इट मीन्स क्यू इज एम्प्टी। और ये चेक हम डिलीशन करते वक्त टॉप पे रखेंगे कि इफ फ्रंट नल देन रिटर्न, अंडरफ्लो का मैसेज प्रिंट करके हमने रिटर्न कर जाना है। अब हम सपोज करें कि वी वांट टू इंट्रोड्यूस आवर फर्स्ट एलिमेंट टू द क्यू। सो हमने क्या करना होगा, ए इज इंसर्टेड टू द क्यू। सपोज करें इस ए को हम इंसर्ट करने जा रहे हैं क्यू के अंदर। तो क्या होगा, जिस तरह भी हमने थोड़ा टाइम पहले बात की कि इंजर्शन करते वक्त और डिलीशन करते वक्त हमारे पास इंजर्शन करते वक्त हमारे पास रेयर जो है बाय 1 इंक्रीमेंट होता है, मूव टू नेक्स्ट इंडेक्स जाता है, और डिलीशन करते वक्त हम जो है फ्रंट को जो है वो अपडेट करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो अभी हमने क्या लिखी थी वो असाइनमेंट, फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1। इंजर्शन हम रेयर एंड पे करते हैं, ये हमेशा याद रखें। ये इंजर्शन हम जब हम पहले कर रहे हैं तो रेयर को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास जब हम इंजर्शन करेंगे, इंजर्शन के ऊपर आएंगे तो हमें ये चेक रखना होगा कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इक्वल टू 0। अगर फ्रंट और रेयर दोनों आपस में क्या हैं, वो बराबर हैं और दोनों 0 पे हैं, इट मीन्स क्यू इज़ एम्प्टी। एंड इफ़ यू वांट टू इंसर्ट एलिमेंट टू द क्यू इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। सो उस केस में हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों अपडेट होंगे। जिस तरह हमारे यहाँ पे इस केस में हम ए को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस केस में आपने देखा इंजर्शन सिर्फ रेयर एंड पे हुई है, लेकिन रेयर के साथ साथ फ्रंट को भी अपडेट किया गया है। फ्रंट इक्वल 1 एंड रेयर इक्वल 1, और उसके बाद हमने क्यू रेयर पे यानी क्यू के रेयर इंडेक्स पे हमने आइटम ए को कॉपी कर दिया। एंड दिस इज़ द वन एंड ओनली कंडीशन जहाँ पे इंजर्शन करते वक्त रेयर के साथ फ्रंट भी अपडेट होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जब भी हम इंजर्शन करेंगे तो सिर्फ रेयर ही अपडेट होगा, लेकिन सिर्फ उस कंडीशन में जब हमारे पास क्यू एम्प्टी होगी और हम पहला एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट करने जा रहे हैं तो उसके साथ हमने फ्रंट के साथ रेयर को भी इंसर्ट करना होगा। तो दूसरे उसमें मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जब फ्रंट और रेयर दोनों सेम होते हैं इट मीन्स क्यू हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, चाहे वो किसी भी इंडेक्स पे हो, इंडेक्स 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, दोनों सेम लोकेशन पे होंगे, इट मीन्स कि क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है। और जब हम उस एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो वापस दोनों 0 हो जाएंगे। अभी हम डिलीशन नहीं कर रहे। नेक्स्ट में मैंने क्या कहा कि बी एंड सी आर इंसर्टेड।
अब हम बी और सी को इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो लिखे गए हैं, इन ऑर्डर इन विच दे आर रिटन, हमने इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। तो ये किस तरह इंसर्शन हुई है, यहाँ पे फ्रंट अपने 1 पे ही रहा है फर्स्ट। बी की इंसर्शन के वक्त रेयर हमारे पास क्या था, 1 था, रेयर इक्वल रेयर प्लस 1, तो रेयर क्या बना 2 पे, और क्यू रेयर इंडेक्स पे हमारे पास बी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और जैसे ही हमने सी को इंसर्ट करना चाहा तो अब हमारे पास क्यू जो रेयर जो था यहाँ पे 2 पे था, तो 2 प्लस 1 3, रेयर 3 पे चला गया, और इंडेक्स 3 पे हमारे पास अगला एलिमेंट सी जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गया। इसी तरह अगली लोकेशन पे मैं सिर्फ इंसर्शन इसलिए करने जा रहा हूँ कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ओवरफ्लो चेक किस वक्त आएगा, किस कंडीशन में हमारे पास ओवरफ्लो आएगा। तो डी इज इंसर्टेड। अब हम डी को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इंसर्ट करते वक्त कभी भी हम फ्रंट को नहीं छेड़ते, सिर्फ इस केस के अलावा जब हम पहला एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, यही मैंने आपसे कहा, और वही देखें प्रूव हो रहा है कि फिर रेयर क्या होगा, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1। यहाँ पे रेयर क्या था, इससे पिछली कंडीशन में रेयर 3 पे था, रेयर इज इक्वल रेयर प्लस 1, यानी रेयर के वैल्यू के अंदर 3 प्लस 1 4, तो रेयर को क्या रिटर्न हुआ 4। तो रेयर मूव किया अगले, यहाँ पे इस स्टेज से मूव किया उसने अगली लोकेशन के ऊपर, और इस रेयर इंडेक्स पे हमने नया एलिमेंट डी जो है हमने उसको कॉपी कर दिया, ठीक है, इंसर्ट कर दिया। अब अगर सपोज करें, यहाँ पे तो मैंने अगले एलिमेंट को डिलीट किया है, लेकिन यहाँ पे इससे आगे छोड़ दें यहाँ तक, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे हम इस एलिमेंट को मज़ीद इंजर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे इंजर्शन पॉसिबल है? नहीं। हमारे केस में जो हमने अपने क्यू की लेंथ रखी थी, इट कैन होल्ड ओनली 4 एलिमेंट्स, जो हमारे पास फुल है, और यहाँ पे हमारे पास मज़ीद एलिमेंट इंसर्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो हमारे पास हम एक ओवरफ्लो की एक लोकेशन कंडीशन के ऊपर आ गए हैं। ये कौन सी कंडीशन है, जब हम देखते हैं कि हमारा फ्रंट जो है वो बिल्कुल पहले इंडेक्स पे है, और हमारा रेयर जो है वो बिल्कुल एन पे है, आखिरी इंडेक्स पे, जो हमारे पास 4 है। यहाँ पे जो अरे की लेंथ एन है, एन इक्वल 4 है, तो ये हमारे पास ओवरफ्लो का पहली कंडीशन हमारे पास आ गई है ओवरफ्लो की, कि जब हमारे पास इफ फ्रंट इज इक्वल इज एट फर्स्ट इंडेक्स एंड रेयर इज एट लास्ट इंडेक्स, क्योंकि हम 1 बाय 1 गए हैं पहले इंडेक्स से आखिरी इंडेक्स तक, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि दरमियान में कोई जगह खाली हो। सो दिस इज़ अ ओवरफ्लो सिचुएशन कंडीशन। एक तो ये कंडीशन हमारे पास ओवरफ्लो की आ गई है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। ये चीज़ हम इंजर्शन एल्गोरिदम के अंदर फिर आपको आपने अपनी मेमोरी को रिकॉल करना होगा कि ओवरफ्लो की एक वो कंडीशन व्हेन फ्रंट इक्वल 1 एंड रेयर इक्वल n, ठीक है, आखिरी इंडेक्स पे हो, तो फिर हमारे पास नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए कोई लोकेशन, कोई हमारे पास जगह नहीं बचती। तो ये हमारे पास एक ओवरफ्लो का चेक है, एक वो कंडीशन है जहाँ पे हमारे पास ओवरफ्लो आएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम देखें, सपोज़ ए इज़ डिलीटेड, हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ए के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ए इज़ अ फ्रंट एलिमेंट। सो अब डिलीशन करते वक्त हमारे पास फ्रंट अपडेट होगा इस असाइनमेंट के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू, फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1। तो फ्रंट क्या था, 1 था, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, फ्रंट कहाँ पे चला गया, 2 पे, ठीक है। आप देख रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं आगे, जिस सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट इंसर्ट हुए थे। ए इज़ डिलीटेड, एट दिस स्टेज ए इज़ डिलीटेड। अब हमारे पास फ्रंट जो है वो 2 पे है और रेयर अपनी लोकेशन पे है, क्योंकि डिलीशन करते वक्त हम रेयर को नहीं छेड़ते। सो बी सी डी में हमारे पास जो है वो बी पहले इंसर्ट हुआ था, सी उसके बाद और डी उसके बाद। सो दिस वाज द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। नाउ इफ वी फर्दर वी वांट टू डिलीट एनी अदर एलिमेंट, सो बी विल बी डिलीटेड। तो बी इज डिलीटेड, फ्रंट इक्वल 3, फ्रंट 2 से कहाँ पे चला, मूव कर जाएगा 3 पे, इसी सिंबल के असाइनमेंट के थ्रू, फ्रंट इक्वल फ्रंट प्लस 1, हम 1 बाय 1 मूव करते जा रहे हैं। डी डिलीट हो गया इस लोकेशन से। आप देखें फ्रंट चेंज हो गया लेकिन रेयर अपनी लोकेशन पे है। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे मैंने नहीं लिखा इसलिए। अब देखें, अगर जैसे ही हमने एक एलिमेंट डिलीट किया यहाँ पे, या ये 2 कर दिए, तो पीछे हमारे पास जगह खाली है, ठीक है। अगर हम ओवरफ्लो चेक पे आ जाएं, एफ फ्रंट 1, नो फ्रंट इज नॉट एट 1 बट रेयर इज एट n, और दोनों कंडीशन फुल नहीं हो रही, हमारे पास ओवरफ्लो नहीं आना चाहिए। हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई ओवरफ्लो नहीं है, हमारे पास एलिमेंट पीछे जगह है। लेकिन अगर हम सिंपल क्यू की बात करें, क्योंकि हम आगे ही मूव कर रहे हैं, हमारा जो रेयर है वो रेयर प्लस 1, अगर इसी असाइनमेंट के थ्रू जाएं, इसी स्टेटमेंट के थ्रू, तो क्या हो रहा है, रेयर प्लस 1, रेयर कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स 5 पे, जो हमारे पास इंडेक्स ही नहीं है, हमारे पास आखिरी इंडेक्स जो है वो 4 है। बट वी आवर
अरे कैन होल्ड टू मोर एलिमेंट्स, हमारे पास अरे क्यू कैन होल्ड टू मोर एलिमेंट्स, हमारी क्यू के अंदर दो मजीद एलिमेंट आ सकते हैं, लेकिन अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब दो चीज़ें हैं, या तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, पहले सी को हम डिलीट करेंगे, इस तरह हमारा फ्रंट भी 4 पे चला जाएगा और रेयर भी 4 पे होगा, और जैसे ही हम डी को डिलीट कर देंगे फ्रंट भी 0 हो जाएगा, रेयर भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे, और फिर हमारे पास हम उसी कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। बट देखा जाए तो दिस इज़ अ नॉट अ लॉजिकल वे, एक लॉजिकल वे में नहीं है। अगर हमारे पास जगह खाली है तो क्यों हम उसको यूज़ नहीं कर सकते? तो इसको यूज़ करने के लिए हम इसको थोड़ा सर्कुलर क्यू का एक आइडिया हमारे पास आता है, इसको हम सर्कुलर क्यू बनाएंगे कि जब हमारे पास फ्रंट या रेयर दोनों में से कोई एक चीज़ भी जब आखिरी लोकेशन पे आ जाएगी, देन वी कैन सेट देम, वी कैन स्टार्ट देम फ्रॉम द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द क्यू। फिर हम अपने उस फ्रंट को या उस रेयर को हम वापस पहले एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें जिस तरह के यहाँ पे है, अब ई इज़ इंजर्टेड, ई को हम इंसर्ट करना चाहें तो इंजर्शन किस एंड पे होती है? रेयर एंड पे होती है। अब फ्रंट तो अपनी लोकेशन पे ही है क्योंकि इंजर्शन हो रही है। अब अगर हम रेयर को उसी सीक्वेंस में इंसर्ट करें, हम कहें कि रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, तो ये आगे तो हमारे पास जगह ही नहीं है। तो इस केस में हमें डिलीशन करते वक्त ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको इसलिए अभी आपको बता रहा हूँ कि आगे हम जब इंजर्शन डिलीशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिपीट होंगी। तो इस केस में हम डिलीशन एल्गोरिदम करते वक्त हमने बहुत सारे चेक रखने होते हैं। उन चेक में से एक चेक ये भी होता है कि इफ़ रेयर इज़ एट एन, अगर रेयर जो है वो आखिरी लोकेशन पे है, देन सेट रेयर इक्वल 1, वापस रेयर को कहाँ पे सेट कर दो? 1 पे ले आओ, फर्स्ट इंडेक्स पे ले आओ। तो हम उसके थ्रू इस रेयर को वापस 1 पे ले आएंगे और रेयर हमारे पास 1 पे आ जाएगा। फ्रंट उसी तरह इंडेक्स 3 पे है, उसके बाद डी है, तो इस रेयर इंडेक्स पे यानी इंडेक्स 1 पे हम इसकी ई को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर देखने में आप देखें तो ये ई जो है स्टोर एट इंडेक्स 1, बट अगर आप फ्रंट से पूछें तो फ्रंट आपको बता रहा है कि आपका फ्रंट एलिमेंट जो है वो स्टोर्ड है इंडेक्स 3 पे, जो सी है। ये फ्रंट कभी भी आपको इस ई को रिमूव नहीं करने देगा उस वक्त तक जब तक आप सी और डी को रिमूव ना कर दें। इसी से उसमें अगर हम मजीद डिलीशन करने जाएं तो ये फ्रंट सी को डिलीट करके 4 पे चला जाएगा यानी डी पे चला जाएगा, और इसी तरह जिस तरह हमने रेयर को वापस सेट किया है, डी को भी डिलीट करके हम वापस रेयर को वापस लेके 1 पे ला सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेयर कहाँ पे आ जाएगा? ई पे आ जाएगा, उस एलिमेंट पे जो सी और डी के बाद में इंसर्ट हुआ है। इसी तरह मैं ओवरफ्लो के एक और चेक की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि क्यू के अंदर हमारे पास इंजर्शन करते वक्त अरे रिप्रेजेंटेशन में अरे के अंदर अरे को यूज़ करते हुए क्यू रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास ओवरफ्लो के दो चेक आएंगे। दूसरे चेक जो है उस कंडीशन पे लेके जा रहा हूँ आपको। अब हमारे पास इस लोकेशन पे आप देखें, इस स्टेज के ऊपर हमारे पास क्यू इस कंडीशन में है। अब हम इसके अंदर एफ इज इंसर्टेड, अगर हम एफ को इंसर्ट करना चाहें तो क्या होगा? तो सी तो अपनी जगह पे है, डी भी अपनी जगह पे है, यानी फ्रंट तो अपनी लोकेशन पे ही है जो है 3 पे इंसर्ट कर रहे हैं। तो अब वही रेयर कहाँ पे है? 1 पे है, 1 प्लस 1 रेयर चला जाएगा 2 पे, ये अपनी जगह पे है, रेयर मूव कर जाएगा अगली लोकेशन पे, और इस लोकेशन के ऊपर हमारा जो अगला एलिमेंट है एफ वो इंसर्ट हो जाएगा। अब आप एक दफ़ा फिर देखें, हमारी जो क्यू है वो बिल्कुल फुल है, हमारे पास जगह नहीं है। सो दिस इज़ एन अदर कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। लेकिन जब हम ओवरफ्लो की कंडीशन पे आते हैं तो हमारे पास फॉल्स आती है। हमारे पास जो ओवरफ्लो की पहली कंडीशन थी वो ये थी कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू 1 एंड रेयर इक्वल n, जब रेयर आखिरी इंडेक्स पे हो और फ्रंट पहले इंडेक्स पे हो, इट मीन्स क्यू हमारे पास फुल है। अब अगर इस कंडीशन को हम देखें, ना ही फ्रंट 1 पे है और ना ही रेयर आखिरी इंडेक्स पे है, क्योंकि फ्रंट तो यहाँ पे इस वक्त आप देखें, दिस इज आवर फ्रंट एंड दिस इज आवर रेयर। मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, आपको नंबर सही समझ आ जाए। 3 4 यानी हमारा फ्रंट जो है इंडेक्स 3 पे है और रेयर इंडेक्स 2 पे है, पीछे है। तो यहाँ पे भी अब हमारे पास क्यू के अंदर जगह नहीं है। तो इसको अगर मैं वर्ड्स में कहूँ तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि व्हेन फ्रंट इज नेक्स्ट टू द रेयर, दिस इज अनदर कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, दिस इज अनदर ओवरफ्लो कंडीशन, कि जब फ्रंट जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट हो किसके? रेयर के, और उसका जो सीक्वेंस है वो इस तरह हो कि रेयर पीछे हो और फ्रंट उसके बाद हो। तो ये भी वो कंडीशन है जो हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन बनती है। अगर ये इस सीक्वेंस में आएंगे, आगे हम देखेंगे कुछ ऐसी कंडीशनें भी आएंगी जब फ्रंट पीछे होगा, रेयर आगे होगा।
तो ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं देगा। हमारे पास जगह होगी, या आगे जगह होगी या पीछे जगह होगी, यानी ये दरमियान में कहीं हुए तो फिर इनसे आगे भी जगह हो सकती है, और अगर इस एंड पे हुए, आखिरी एंड पे हुए, तो पीछे जगह हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास ये कंडीशन आती है कि व्हेन फ्रंट इज नेक्स्ट टू द रेयर, व्हेन फ्रंट इज नेक्स्ट टू द रेयर, सो दिस इज अनदर कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। तो इसको हम सीडो कोड में कैसे लिखेंगे? तो दिस कैन बी अचीव्ड एज इफ फ्रंट इक्वल रेयर, सॉरी, इफ फ्रंट इक्वल रेयर प्लस वन, इफ फ्रंट इक्वल रेयर प्लस वन। ये असाइनमेंट सिंबल नहीं है, यहाँ पे मैं लफ्ज़ इफ़ यूज़ कर रहा हूँ। सीडो कोड के अंदर जब हम लफ्ज़ इफ़ वाइल यूज़ करते हैं तो ये सिंबल एज अ कंपैरिजन सिंबल यूज़ हो रहा है, और जब हम सेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो फिर वो असाइनमेंट सिंबल होता है। जैसे हमने कहा कि सेट एफ इक्वल एफ प्लस वन, इट मीन्स कि ये चीज़ करके असाइन कर दो एफ को। यहाँ पे मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ इफ़, कंडीशन है कि इफ़ फ्रंट इज इक्वल रेयर प्लस वन, यानी फ्रंट की जो वैल्यू है, हमारे पास फ्रंट इस वक्त क्या है? 3 है। अब देखें, फ्रंट इक्वल 3 एंड रेयर क्या है? 2 है। सो 2 प्लस 1, 3 इक्वल 3। सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। तो हमारे पास ये याद रखें, क्यू के अंदर ओवरफ्लो की, क्यू इंजर्शन करते वक्त हमारे पास ओवरफ्लो की दो कंडीशन है। एक वो कंडीशन जब हमारे पास क्यू का के अंदर जो हमारे पास फ्रंट है वो बिल्कुल पहले इंडेक्स पे होगा, पहली लोकेशन के वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, और जो रेयर है वो बिल्कुल आखिरी लोकेशन की वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। तो दरमियान में हमारे पास कोई जगह नहीं है किसी नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करने की, नए एलिमेंट को ऐड करने की। एक तो ये हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन है जो यहाँ पे हमारे पास आई थी यहाँ पे, और दूसरी जो ओवरफ्लो कंडीशन, ये सारी प्रैक्टिस आपको इसलिए करवाई है, ये ओवरफ्लो कंडीशन है कि व्हेन फ्रंट इज नेक्स्ट टू द रेयर। तो जब हम सर्कुलर क्यू की बात करते हैं, और हमें क्यू को सर्कुलर ही बनाना होगा क्योंकि हमने क्यू को इम्प्लीमेंट किया हुआ है अरे के अंदर, एंड अरे इज़ अ स्टैटिक स्ट्रक्चर। तो हमने अपनी मेमोरी को यूटिलाइज करना है बार बार, बजाय इसके कि हम वेस्टेज ऑफ मेमोरी करें, हम जिस एलिमेंट को डिलीट कर दें दोबारा अगर उस लोकेशन को यूज़ ना कर पाएँ, तो दिस इज़ अ नॉट गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच। तो ये सारी उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।